مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایک گاؤں میں بہت سارے گروپ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اچانک ہی ان پہ ایک ایماندار پولیس آفسر آ جائے تو کہتے ہیں یار اپنی لڑائیاں بعد چو ویکھاں گے، پہلے اس افسر دے نال نبڑ دینے، وہ بعد پھر پہلے انہوں سائڈ چ کرو، پھر بعد چ اسی آپس چ ویکھ لیں گے۔ زبردست۔ تو مجھے تو بہرحال اسی طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کا میں اور تعلق کچھ جماعت نہیں کہوں احمدیہ سے نہیں ہے نا سہیل ناصر صاحب؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں صرف ابھی دیکھ ہی رہا ہوں، میں ٹک ٹاک پہ اور دین کی طرف جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھ رہا ہوں، بس میں دیکھ ہی رہا ہوں ابھی۔ بہت زبردست، اللہ میاں آپ کو توفیق دے کہ آپ وقت کے امام کو، مسیح موت کو پہچان سکیں، اور آپ کے لیے جناب ڈھیروں دعائیں ہیں۔ جی ملک صاحب۔ ملک صاحب کھولو مائک پٹو۔ جی جی جی، میں کیا جناب سے پوچھے، آپ صرف دیکھ رہے ہیں یا سن بھی رہے ہیں؟ لازمی جب ٹک ٹاک پہ رہے ہیں تو سن بھی رہے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے یار کہ پیارے بھائیوں، میں احمدی ہوا ہوں، تو میں اپنے پیارے بھائیوں کے عقیدے چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے ان کی ایک ایک بات پتہ ہے۔ ان سے کہیں، ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں، کبھی میرے پیارے بھائی مسلمان بھائیوں کو کہیں، سرکاری مسلمانوں کو، کہ آپ قرآن سے بات کریں تو یہ نہیں کرتے ہیں، یہ سیدھا نکلتے ہیں مرزا صاحب کی شخصیت۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، الزام تراشیاں، اور ادھر سے اور مطلب لے کر، جس طرح قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نماز کے نزدیک بھی جاؤ نہ جاؤ، تو یہ اسی طرح پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے۔ مرزا صاحب کی بھی یہ پوری تحریرات آگے سے پیچھے سے بالکل نہیں پڑھیں گے، جہاں پر ان کے مطلب صرف اس بات سے ان کے حق میں جا رہے ہو، آگے پیچھے سے چھوڑ کے وہ صرف وہی پڑھیں گے کہ یہ مطلب اگر پوری ان کی عبارت پڑھ دی تو اس کا سامنے مطلب آ جائے گا جو یہ نہیں بتانا چاہتے۔ باقی کوئی بھی شخص ایمانداری سے اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کرے، ایمانداری سے متقی بن کر، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ احمدی جماعت میں شامل نہ ہو۔ ہاں، باپ دادا کے عقیدے لے زبردست مرضی چلتا رہے، جو مرضی مانتا رہے، کہتا رہے، اس کے زبردست، جزاک اللہ جی۔ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ جی طارق چوہان صاحب، تسی آؤ، تسی یہ دسو کہ تسی اللہ والے ہو کیڑے پاسے نکل گئے ہو؟ تانوں بھی دعوت ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ جی، اصل بات ہے کہ یہ ایک سوال ہے جو ہر زمانہ میں یہ رہا ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ اسلامی فرقوں کے جو ایک جنگل ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اس میں کون سا فرقہ حق پر ہے؟ اور یہ اتنا اہم سوال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب نہ بتایا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پائیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، اور اس میں قرآن مجید میں بھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بتایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور کی جو آیت 56 ہے، آیت استخلاف، اس کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء کا وعدہ دیا، جو ایک دائمی روحانی خلافت ہے، اور حدیث مجددین میں، سلسلہ مجددین کی صورت میں، ہر صدی پر امام کے مبعوث ہونے کی امت محمدیہ کو خوشخبری دی گئی ہے، جس کا منکر فاسق ہے۔ یہ آیت استخلاف کہہ رہی ہے، من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ پر جب خدا تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ مبعوث ہو جائے، جو مجدد ہوتا ہے، وہ وقت کا امام ہوتا ہے، تو پھر جو اس کا انکار کریں گے وہ فاسقین ہیں، اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں، جہالت کی موت مریں گے۔ اس لیے ہر طالب حق کے لیے یہ بہت آسان بات ہے کہ وہ ہر صدی میں اپنے اس ایسے شخص کی تلاش کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور آیت استخلاف میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق وہی پا کر مجدد ہونے کا دعوے دار ہے۔ مجدد جو ہوتا ہے وہ کوئی کمیٹی نہیں بناتی، وہ مجدد اللہ تعالیٰ سے وہی پا کر ہوتا ہے۔ یہی بات آیت وہ جو حدیث مجددین میں۔ جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا۔ جی اسسٹنٹ سرجن صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہیں یہ آپ ہے کی؟ کہ موضوع تو نہیں مجھے پتا، لیکن دو
2-2 मिनट लगे हुए थे। मौजू तो नहीं पता मुझे कि किस मौजू पर बात चल रही है, मैं अभी आया हूँ। अच्छा लेकिन आपकी वो जो आपने तस्वीर लगाई है उसके ऊपर लिखा हुआ है गुफ्तगू के 2 ही असूल हैं, अपनी बारी पर बात करनी है और इखलाक का दामन नहीं छोड़ना। तो ये जमातें कादियानिया जो है वो इखलाक का दर्स देते आए हैं, शुरू से ही दर्स देते आए हैं। लेकिन ठीक है, कभी शायद कि इन्होंने अपनी किताबें पढ़ी हों, शायद कि इन्होंने मिर्जा साहब को पढ़ा हो। सबने अब पढ़ा है। देखें ये जो मलक तला साहब आए थे, कहते नहीं जी ये सीधा मिर्जा साहब की बात करते हैं। भाई देखें नबी अलैहिस्सलाम ने पहले शख्सियत को मनवाया, सबसे पहले अपना सादिक होना बताया और फिर ऐलान किया, ऐलान नबूवत किया और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। जबकि जमात कादियानियां उलट चलती है, वो कहती नहीं, शख्सियत को नहीं देखना तुम लोगों ने, मिर्जा साहब पर बात नहीं करनी। तो यहाँ पे मिर्जा साहब देखें वो खुद इकरार करते हैं इखलाक का दामन ये है जी। वो कैसे छोड़ते हैं, वो कहते हैं कि मौलाना हुसैन बटालवी ने मुझे मजबूर किया है कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, वरना मेरी आदत नहीं, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता था, मगर बटालवी और उसके उस्ताद ने मुझे बुलाया है। और बुलाया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी गालियां उनकी सुनने, वो कहते हैं जी इनकी कि गालियां मैं गालियां देने वालों को गालियां, मैं असल जी में जी आपसे गालियां मैं अब बताता हूँ एक उनकी। चीज मैं डॉक्टर जी साहब जी वो ना, खत्म करता हूँ 10 सेकंड अगेन के जी। जी अ, जी मैं असल में ये अर्ज कर अब रहा तो रह हूँ, गए, खत्म हो गया, आपने बीच में बोल दिया। अगली बारे पे मैं बताऊंगा जी उनका चले अगली खलाक बारी का। होता है। असल में ये शो टाइम यही था, बाद में आपको मौका मिलता है पूरी बात करने का। बात एक बारी फिर चला दियो शो टाइम अलीम भाई, एक बारी फिर चला दियो। नहीं नहीं ऐसे करें कि दो थोड़ी सी दो बात बंदे या करने एक का वक्त बंदा होते दो हैं, चला बंदों देते से हैं। डॉक्टर साहब भी तशरीफ या ले आए हैं। अरे भाइयों, वन टू वन गुफ्तगू कर लेते हैं, मौजू तय कर लेते अलीम हैं। भाई, जी तारक चौहान साहब भी मौजूद है, करें बात तारक चौहान साहब से जी कि देखें, साहब ये जमात अहमदिया वाले बार बार ये सवाल करते हैं कि जी पहले मुजद्दिदों के बाद बताएं नहीं नहीं, तारक चौहान साहब अभी अभी असिस्टेंट सर्जन साहब ने ये फरमाया है क्या। कि मिर्जा साहब ने कोई नाउज बिल्ला अपनी किताबों में गालियां दी हैं। ये बात अक्सर होती है, ये बात ऐसी है कि इनको ये बताना पड़ेगा। इस पे मैंने जो आज इस बारे में मैंने पढ़ा है, इसी बारे में मैं इत्तेफाक से अभी मैं आज ये चीज़ पढ़ रहा था और मैंने एक सवाल जवाब की महफिल भी में भी ये सवाल सुना जो खलीफा राबे से भी किसी ने किया गया और एक रबी साहब ने भी उसका जवाब दिया। मैं उसको देता हूँ, बाकी आप जो है वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी असिस्टेंट सर्जन साहब, बात ऐसे है कि मिर्ज़ा साहब ने कहीं पे भी गालियां नहीं दी जो कि आप कह रहे हैं किसी को। हाँ, आपने एक बात ठीक की है, वो की है कि बटालवी साहब और दूसरे ऐसे उलमा जो कि मिर्ज़ा साहब को गालियां देते थे, तो उनके जवाब में जो कि उन्होंने शदीद गालियां दी, उनके जवाब में मिर्ज़ा साहब ने कहीं पे ठीक हो गया, इख्तियार किया। ठीक जी हो अब गया अलीम साहब। सबसे दलील ये है, पहले आपने सुन तो सबूत लेना, देना है, अब सुन सबसे तो पहले लेना। आपने सबूत देना है कि मौलाना हुसैन बटालवी या दूसरे उलमा ने गालियां दी और वो गालियां मिर्जा साहब ने कोड की हो, फिर वो हमें वो गालियां आपने उनके अच्छा, इशातो मिर्ज़ा सुन्ना साहब से ने या दूसरी एक कुतब से दिखानी है। जबकि एक मिनट बात सुने ना, आपकी बात मुकम्मल हो गई है, थोड़ी नहीं, एक अभी मिनट नहीं मुझे हुई भी ना, देते हैं। अभी नहीं हुई, अभी नहीं आपने हुई। हवाला देना है मैं इंशाल्लाह। देता हूँ आपको। ये मिर्जा ये साहब मर्द मुजाहिद इधर बैठा है, अभी एक भी नहीं, अभी हवाला सुनिएगा, मैं अभी जमात एक हवाला कादियानिया नहीं दे सकेगी। मैं कोशिश करता जबकि हूँ। मिर्जा मुझे साहब अभी कहते हैं, एक एक आप मुझे सज्जन एक साहब मिनट मेरी दें बात सुन अलीम लेना, मेरी साहब। बात सुन लें, बात तो सुन लें, बात तो सुन जी लें, आपको मौका दूंगा। जल्दी है कोई, हमने जाना नहीं है, साढ़े को बड़ा खुला टाइम है, इतने बैठे हैं। मेरी बात सुने, आपको मैं इस चीज का हवाला दे सकता हूं। मुझे शायद पीछे जाना पड़ेगा या मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने आज ही पढ़ा है। इसकी दलील ये है, मिर्जा साहब ने एक जगह पे ये लिखा है कि मेरे मुखातब जो कि जब वो मिर्जा साहब उनको जवाब दे रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं कि वो शुरफा नहीं हैं, मेरे मुखातब वो बदजुबान मुल्ला हैं जो कि हमें गालियां देते हैं। तो मिर्जा साहब ने ये वाजे किया हुआ है और ये लिखा हुआ है। अगर आप मुझे इस तहरीर का हवाला मुझसे चाहते हैं तो ये मैं आपको दे सकता हूँ। एक अगर मैं नहीं नहीं नहीं, आप हवाला दें हमारे उलमा देखें, के। एक मिनट बीच में अभी कोई ना बोले, अलीम साहब बात कर रहे हैं। नहीं अलीम साहब देखिए बात कर रहे आपने हैं, मेरे हवाला से देना अलीम है साहब की दूसरा, तो फर्ज नहीं है एक कि मुझे नबी बात की। करनी है, डॉक्टर साहब तहम्मुल के एक साथ मिनट, बात करें। एक मिनट अलीम साहब, इल्जाम आपने लगाते अपनी कुतुब हुए का हवाला जो देना है वो मेरे अली पास साहब मौजूद ने है। जो हमारी फतह का ये कायल नहीं, साफ समझा जाएगा कि वल्दुल हराम भाई बनने एक का मिनट, शौक है और हलाल ज्यादा नहीं।
ये हाँ जी, गाली नहीं है। भाई एक ये मिनट मिर्जा बीच साहब में का ना कलाम बोले है यार, फिर बिल्कुल। एक बंदा बात कर लेना, जी तारक एक चौहान साहब बंदा अभी बात आपके कर लिए ले। बता रहे हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, लेकिन असिस्टेंट सर्जन तारक ये चौहान साहब आपको देखें जवाब देंगे। जी नहीं जी, देखे ना, अभी एक तो इन्होंने ये कहा बात कि है कि एक मिनट भाई, ये कह रहे हैं मिर्जा भाई साहब एक को गालियां मिनट, दी। फैसल साहब एक मिनट। अभी इन्होंने कहा कि मुखालिफ उलमा, ये है जी रूहानी खजाइन जिल्द 7 सफ़ा 471, जिल्द 17 सफ़ा 471, कहते हैं मैं महज नसीहतन लिल्ला मुखालिफ उलमा और उनके हम ख्याल लोगों को कहता हूँ कि गालियां देना, बदजुबानी करना तरीक शराफत नहीं। वो तो खुद मुखालिफ उलमा को कह रहे हैं कि गालियां देना तरीक शराफत नहीं। अगर मुखालिफ उलमा को गालियां देना तरीक शराफत नहीं है, तो फिर मिर्जा साहब ने गालियां दे के शरीफों वाला काम तो नहीं किया। आपने कहा गाली कोई नहीं है, ये सुनिएगा गाली। नहीं ये मैंने कौन ये गालियां देता है, ये सुनिएगा कोई अभी। गाली वो नहीं है कहते हैं जी जिल्द 14 सफ़ा 53 है, कहते हैं उनकी औरतें जो हमारे मुखालिफ हैं, उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। ये अच्छा गाली नहीं है। फिर अच्छा, आगे वो कहते हैं कि जनाब ये अली, वो हम पढ़ कहते हैं चुके कि हैं, जो ये भी बड़ी दफा हम सुन चुके हैं, हम पढ़ नहीं चुके नहीं हैं, नहीं, आप बार बार हाँ पढ़ेंगे। जी, तो बताएं ये गाली है कि नहीं, मैं आपको ये मेरी नहीं खिलाफ का मिर्जा दामन हाथ से देखे, छोड़ा कि नहीं। मिर्जा साहब ने ये भी कहा है कि हरामजादा की ये निशानी है कि सीधी राह अख्तियार ना करे और जुल्म और नाइंसाफी की राहों से प्यार करते रहे। ये मिर्जा बिल्कुल साहब ने ये बातें की हुई हैं, ये इसको उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल बात है कि कुरान मजीद, मिर्जा साहब ने तो उनको कुत्तियों की औलाद कहा है, कुरान मजीद तो उनको जानवरों से भी बदतर कह रहा है। सूरह आराफ की पढ़ लें आयत, उसमें अल्लाह ताला ये कहता है जानवरों से भी ज़्यादा भटके हुए हैं लोग, क्योंकि इनके कान हैं सुनते नहीं, दिल है सोचते नहीं, और आंखें हैं देखते नहीं। तो मिर्जा साहब ने तो हाथ हौला रखा है, बल्कि इनको कहना था कुत्तियों नहीं की औलाद नहीं, नहीं, बल्कि ये जानवरों से भी बदतर कुत्तियों की औलाद है। नहीं, वो ये कहा है उनकी औरतें, ये मिसाल उनकी आप अल्लाह औरतें। ये मिर्जा सुब्हान साहब ने एक बिल्कुल मिनट सही भाई, कहा है, इसमें कोई ऐसी एक बात नहीं है मिनट, कि उन्होंने बीच में गलत कोई ना किया। बोले, मैं बात करता हूँ। फैसल फैसल जो साहब साहब एक मैं जो बात करता गुस्ताखी हूँ, का इनकार फतवा ना करता करवा है तारक दो, वो साहब को जवाब बदतरीन देता हूँ। कौम है। सीधी अल्लाह गल है। ताला एक फरमाता बंदा है बात करे, बदतरीन एक बंदा शर्रुल बात करे, बरिया, बदतरीन एक कौम मिनट बात, है। ठीक हो गया, मैं आपकी बात मिर्जा समझ साहब ने ली है, सही कहा मैंने है आपकी सुन ली बिल्कुल। बात, आपकी सब बात सुन ली है। ले जी, हाँ जी, सारे सुनने वाले तो अगर 71 सुन लिए लोग, तो बस फिर 72 बात लोग खत्म हो गई मौजूद ना। हैं। वो अब कहते आप क्या हैं जी बात करेंगे? तो कुरान इसमें तो ने बात जो खत्म हो मिर्जा गई। साहब ने कहते गालियां दी है ना, वो अभी बात सुनने दे ना, नहीं 72 बंदे सुन रहे हैं। तारक चौहान साहब ने अभी जनाब ये जमाते लाहौरिया से हैं, और ये अच्छी खासी इनकी भी नहीं, करते ये भी रहते नहीं हैं आपने गलत दिया कर जमाते नहीं रहे है, रघुआ हैं की। बात जमात आप। लाहौर से नहीं, अभी लाहौरियों बात तो को सुना यार, बात फासिक तो हाथ तो समझते हैं। होला रखो भाई जी, बोलन दो। हाँ अच्छा, वो तो इन्होंने क्यों कहा गलत जी कर रहे हैं कि कि मैं ये जमात लाहौर से हूँ? मिर्जा मैं कोई साहब ने लाहौर ये से कहा नहीं। है कि उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं, ये तो बहुत हाँ अच्छे ये अल्फाज बिल्कुल हैं। सही कहा है उन्होंने। जबकि कुरान ने शरुल बरिया उनको बदतरीन मखलूक कहा है। क्या हाँ कहा है? बदतरीन मखलूक। हाँ, मतलब ये हुआ कि जो मिर्जा साहब ने गालियां दी हैं, कुरान ने तो उससे भी ज्यादा बढ़ के गालियां उससे दी भी हुई बढ़ हैं। के ठीक दी है है। जी, हाँ गालियां दी हैं। वो जमाते जी, कादियानिया का अकीदा हाँ है कि ये कुरान में गालियां हैं, जबकि गाली की सिफ्त ये होती है कि वो ऐसी वस्फ बयान करना जो किसी के अंदर ना हो। जैसे मैं आपको चोर कहूँ, आप चोर ना हो, हाँ ठीक है, मैं आपके अंदर ये वस्फ जो है वो मैं आपके अंदर शामिल कर दूं, तो जनाब ये होगी गाली। अब हाँ जनाब ये औरतें कुत्तियों से बढ़ गई, हाँ उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। जबकि कोई कोई इंसान है जो मिर्जा साहब को नहीं मानता, वो उसकी फतह का कायल नहीं है। क्योंकि एक वो उसको शर्रुल गाली गई, बरिया है ना, तो वो कुत्तियों से भी एक बढ़ के उसकी इससे भी और ज्यादा बढ़ गई हैं, बल्कि उनकी वो मच्छरों औरतें के कुत्तियों बच्चों से से बढ़ भी गई। बढ़ गई हैं। फिर मिर्जा साहब खुद इकरार करते हैं जी, अगला हवाला लें जी। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं गालियां देने वालों को गालियां भी देता हूं, ये सुने हाँ खुद। जब कि मिर्जा साहब ने कहा ये तरीक शराफत नहीं है, जब ये शरीफों वाला काम नहीं है, तो मिर्जा साहब कहते हैं मैं शरीफों वाला काम करता ही नहीं हूँ। जबकि अल्लाह ताला ने और कुरान शरीफ में जहां भी शरुल बरिया बदतरीन मखलूकात का कहा गया, जबकि वो उनके अमाल, उनके उनके मामलात ऐसे थे कि उनको कहा गया, क्योंकि ये नहीं है कि उनको गाली दी गई है। जी ये नहीं, जो है, अल्लाह देखे जी ताला मिर्जा के साहब मुरसल का जिल्द मुनकिर होता है ना, 14 वो सफा बदतरीन 80, मखलूक है। बताता हूँ इनकार करना जी बदतरीन बताता हूँ, मखलूक ठीक होना हो गया, बताता हूँ और जी। गालियां देने वाले को ये ना जी कहे जी। कि ये गालियां देने वाले बाजारी मोहल्ले से हैं। अगर किसी चोर को चोर ना ये कहे, देखे जी, कहते हैं नहीं हाँ तो जी फिर चोर जी, आपको चोर ना आपको कहते कहे। कहना हैं पड़ेगा कुरान शरीफ जो है वो बाजारी देखे जबान उसमें इस्तेमाल की गई है। सूरह सख्त कलम पढ़ अल्फाज लें। उनके लिए आए हैं जो गलत काम कर रहे हैं ना, जो चोर है उसको सूरह चोर ना कलम कहे। में उसको कहा गया है, जो कह रहा है कि जी थोड़ा सा हाथ हौला रखो, उसको कहा गया कि अच्छा, तू उनकी तो औरतें मुखाल जो हरामी फतह है। का कायली, उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ फतह गई का हैं। कायल कहते जी नहीं, ये हाँ तो जो बिल्कुल जो सही बद जी कह रहे जी हैं, बद हम तो पूरे मानते हैं सेंटेंस भाई, पढ़ो ना, उसके बिल्कुल पीछे भी ये सही पढ़ो। कहा देखें, है।
बल्कि जो उन्होंने बहुत लिहाज किया है, इससे भी ज्यादा गलत अल्फाज उनको अब करने, क्योंकि वो वो इसी कहते काबिल थे। हैं कि जो दुश्मन है ना वो हमारे आज भी जो बियाबान के मुनकरीन है मिर्जा खंजीर हैं। साहब के, वो ऐसे ही ये हैं। अभी सुने हजूर यार, सल्लल्लाहु हवाला अलैहि तो सुने, वसल्लम ने भी पहले कहा अगला था वाला सुन लें, कि मेरे लोग खुद उलमा फैसला कर लेंगे, बंदरों और सही लोग सूरों खुद से फैसला बढ़ते करेंगे। जितने भी हवाले आप करते जाएंगे मैं जिल्द कहूँगा बिल्कुल सही कहा। जिल्द 14 सफ़ा 80 है। मिर्जा अच्छा साहब कहते हैं मैं अब गालियां देने सज्जन वालों को सज्जन गालियां साहब आपको देता हूँ, जवाब ये मिला इमाम सर्जन नहीं साहब है, को समझ नहीं आ रही, मेरे अभी ख्याल जवाब बयान मिला किए नहीं जा रहे है। हैं, इनको समझ नहीं आ रही है अब पहले बयान जो करते हवाले जा दे रहे, रहे हैं। जब अब आपको 10 बता दफा भी दिया हवाला देंगे तो कैटेगोरिकली आपको ये कि बात उनकी ही वापस सारी जो करेंगे, उन्होंने गालियां दी हैं तो वो फिर क्या नतीजा मुनकरीन निकलेगा? को दी हैं, और मुनकरीन इसी काबिल थे। आज के ये तो मुनकरीन भी मशीन इसी की तरह काबिल हैं। पढ़ते ही जा रहे हैं, बस हाँ ये मशीन जी की तरह लगे हुए पढ़ेंगे हैं, तो पढ़ते जा रहे हैं। 72 लोग पढ़ेंगे। सुन रहे हैं। आप पढ़ने की आज जरूरत ही इन्होंने नहीं, आप मान तो लिया पढ़ेंगे कि तो मिर्जा पढ़ें साहब आप जब गालीबाज आपसे थे। हवाला मांगा आज जाए। इन्होंने मान लिया, वो आपको पहले पढ़ने की मानते जरूरत नहीं थे, नहीं, आज इन्होंने मान आपसे लिया है किसी कि ने कहा वाकई है आप मिर्जा साहब हवाला दें। गालीबाज में थे। रुके ना। ये हाँ, आप आप लोगों झूठ को बोल रहे हैं तो मुखातिब बोली कर रहे हैं, जा आप बोली जा आपसे कैसे रही है। हवाला लोगों नहीं को मांगा जा मुखातिब रहा, कर हम रहे तो हैं? ओन करते हैं इन बातों को। हाँ तो बात फिर ये आप है जी हमको चले बताएं जी। कि जी बात ये उन्होंने कहा है, अब आज तो आप और तो सज्जन पूछें साहब कि जी और बताएं यार एक कहाँ मिनट कहा है। हम जी तो कहते हैं हाँ करो। कहा है उन्होंने, बिल्कुल। हाँ जी बात जी सिंपल जी है, जी जवाब बल्कि आपको सुने, दिया है मिर्जा जो साहब ठीक क्या है। कहते हैं, ए बदजात फिरका मौलवियान, तुम कब तक हक छुपाओगे, कब वो वक्त आएगा कि तुम यहूदियान या खसलत छोड़ोगे। ए जालिम मौलवियो, तुम पर अफसोस कि तुमने जिस बेईमानी का प्याला पिया वही अवाम काला नाम को पिलाया। मिर्जा साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी जी और ये मौलवी वही इसी अल्फाज काबिल है हैं। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि चले जी। वसल्लम और जी अब ये बस सल्लल्लाहु अगला अलैहि वसल्लम वाला के बाद अवाम अपने देखें, आने वाले हलीम उलमा साहब, के बारे में यही कहा हलीम था कि साहब उस्मान अवाम की सबसे फैसला कर बदतरीन लेगी। कौम होगी। हाँ जी, अब बात ये तो अगला आपने हवाला की ले है, लें, जवाब अगला आपका हवाला पहले ले लें, आएगा। और हवाला और की और बात पढ़ेंगे अगला रही, हवाला एक ले आपने लें। हमें झूठ नहीं बोला चाहिए, है हमने सब सिस्टर। पढ़ा कहते हुआ है। हैं कि वालदा साहबा नुसरत रुक जहां जाए बेगम रुक जाए वेट तो कर ले। हवाला कहते दे रहे हैं हैं पर बता नहीं क्यों कहते हवाला दे रहे हैं। हैं, वजह क्या है, रुक वजह क्या जाए है, वजह भी साथ बताओ ना, हलीम क्यों साहब आप वजह म्यूट से करने लग गए हैं। मैं आपको हाँ खुद जी ही म्यूट कर रहा असिस्टेंट हूँ, सर्जन साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपने आपको। ये जो बताएं गलत कहाँ पे झूठ गलत बोला है, हवाला आपने बताएं जो गलत दिया हो, पूरी बात नहीं हवाला की। बताएं गलत दिया। आपने क्या जो फतह के कायल नहीं, ये वजह नहीं थी, उसके पीछे और भी पढ़ो जो कि क्या हाँ वजह जी, थी। वो कहते ये हैं कि वो जो लोग हैं अब्दुल्ला जो अथम की, बदकिरदार लोग हैं जो अब्दुल्ला गाली में अथम नहीं, की वजह जो भी हो, एक बहरहाल कार ये में उनके कहाँ तक अल्फाज पहुंच हैं, गए उन्होंने भाई थे। लिखा सुने है, ना, बिल्कुल सही लिखा है। भाई सुने ना, वो कहते हैं तो अब्दुल्ला आसम की जो पेशगोई उनको पे कहा है, ये नहीं कि नहीं जो मानता फतह ना, के वो कायल सारा नहीं हमने है। पढ़ा है, वो सारा हाँ पढ़ा है। वो कहते हैं जो झूठ ना बोला मुसलमान, करो, आके जो झूठ ना बोला क्रिश्चियन करो। है अब्दुल्ला आसम आगे की आधी बात पेशन करते हो, गोई पूरी नहीं बात नहीं मानता, करते। वो ये हमारी क्या फतह का कायल किस नहीं है, किस्म का नहीं वो जो फर्क देखिए ना, फतह का मैं कायल आपको नहीं एक है। असूली तुम्हारा बात फिर क्या बताता हूँ कि ये जो देखे जी, कहते झूठ मुरसल हैं बोल है के आपके अम्मा जान, वो अम्मा किसी जान भी फतह का मुखालिफ कायल हो नहीं गई है, थी। वो यही है, वो वल्दुल सीरतुल हराम है। महदी सफा 691 हिस्सा 100, ठीक हो गया ना, अम्मा अब जान भी बात मुखालिफ आपकी तो हो क्या गई मसला है थी। इसमें भाई? और मिर्जा साहब ने कहा है कि जो मेरे मुखालिफ है उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है। ठहर जाओ, खामोश हो जाओ, ठहर जाओ, सारे दोस्त खामोश हो जाओ। दोस्त नवे दोस्त आए ना, सलाम दुआ कर लइए। अलीम भाई एक सेकंड प्यारे मैं हो, बात कर सलाम सकता हूँ? अलैकुम अली अक साहब। शुक्र है कादियानियों ने मान लिया कि मिर्जा साहब वाकई रुको, गालीबाज जी थे। जी मोहतरम वालेकुम सलाम अलीम गालीबात भाई तो क्या गालीबात हाल है कहा है। ठीक है या चलो सानी साहब दी जुबानी तबीयत कैसियां ने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆ अलीम ਗਏ साहब ਆ अब अगला गुस्से ये च नहीं वो है। टॉपिक तो असिस्टेंट पूरा सज्जन कर साहब लें। तुसी ये गल 10 दफा भी अब करोगे इमाम दी की बीवी को कंजरी कहा गया, कंजरी कहा मिर्जा साहब ने। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ना ਬਾਰ झूठ ਬਾਰ बोलना ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ रुक ਨੇ। जो यार असिस्टेंट ਤੁਸੀਂ का रुक जो असिस्टेंट सर्जन ये साहब बात सुनो, ये वो है मेरे पास अलीम भाई, ये वो है जाड़ उस्मानी का भाई, उस्मान जट है, उस्मान जट है, मुझे पता है ये उस्मान जट बैठा हुआ है। जट मुंडा ये कौन है, ये असिस्टेंट सर्जन? ये वो ज़िया रसूल मीनी नहीं है, इसका छोटा भरा है। ये वो है? हाँ जी, मुझे भी लग रहा है वही है। इसकी आवाज पहचानी है जरीला मुंडा? मैंने पहचान भी ली है, ज़िया रसूल मीनी का छोटा भरा आएगा वो उस्मान जट, जिसको ना इल्म है ना वो बंदा बैठा हुआ वही। बिल्कुल अभी बात करते हैं और देखें सारे मुसलमानों का हाल देखें, जहालत का हाल देखें, फूल भेज रहे हैं इस पे, वो देखें। पूरी नहीं कर रहा। अम्मा जान भी मुखालिफ हो गई हैं, झूठ बोल के वो कहते ठीक है। इतना अम्मा जान भी माहिर है ना मुखालिफ झूठ हो बोलने गई। के। हमारे जी कोई अली अक साहब। मुखालफत नहीं कर सकता, उस्मान जट हमारे कोई मुखालफत नहीं कर सकता। चल नहीं मुंडा साहब आप हवाला ले मुझसे, मेरे पास हवाला गलत हो। कैसे कैब रहे? रुक जो बड़ी पीपनी छोटी पीपनी इसका नाम है ना, दोनों भाइयों का।
ठीक है बोलने वाली जी गल फैसल साहब ते मलक मलक नहीं अवान नहीं, आप हवाला ले, हम झूठ नहीं बोलते। साहब ठहर जो हवाला लीम अब साहब बेटा मुझसे मेरी तलब बात कर ले। सुन, आ जा इधर, आ जा कनाडा में आके पूरी तरीके से आके भाई 1 to 1 मैं बैठांगा, आ जा, किताबें मैं चलो खोलूंगा, कोई आ जा। नहीं लड़ाई नहीं करनी भाई मैं जर्मनी हूँ, आप मुझसे पूरी इधर तरीके से जर्मनी जाएगा में मिल मिक्स लें। मसाला।
मैं जर्मनी होता हूँ, आप आप मिलने जहाँ पे मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं आपकी कोई ही लड़ाई किताबों नहीं में करनी लिखा है, बड़ी वो आप बात है सुना रहे हो। तलत मलक साहब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ जो आपका एक ਆਉਣ सेकंड ਲੱਗੇ मैं ਜੀ बताऊँ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਦਰੇ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अब बात ये है कि कोई कहते ना इसको इल्मी वो जो भाई ना है, अगर इसके छोटे भरा कोई शख्स कोई सरकारी मुसलमान कुरान मजीद से बात करना चाहता है तो आ जाए बात करे हमारे साथ। बाकी ये बातें करना कि ये हो गया वो गया, कुरान में इस तरीके के अल्फाज अल्लाह ताला ने जो मुसलमान नहीं है और नबियों के मुखालफीन हैं उनके लिए इसी तरीके के अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए इस्लाम के मुखालफों के बारे में। तो ये कह देना गाली, ये कहना कुछ, और ये साहब कुरान की तरफ झूठ ना मंसूब करें प्लीज। चलो मैंने झूठ मान लिया है। अगर आप फिलहाल मुझसे कुरान से बात कर सकते हैं अपने अकीदों से तो आए, अपने अकीदे ले आए, मैं आपको अपने अकीदे बताऊं और आप लोगों को बताऊं कि मैंने आप लोगों को इजाजत दे दे। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, जब बंदा कोई बात कर रहा होता है तो उसकी बात पूरी होने दी जाती है। प्लीज, अब मेरे भाई हो, मैं आपका एहतराम करता हूं। तो प्यारे भाई, बात यह है कि अगर आप अकीदों से या आप या कोई भी बात करना चाहता है वो बात, इल्ज़ाम लगाना दुनिया में सबसे आसान काम, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, और ये सारे नबियों के साथ हुआ है, ये एक इज़्ज़त साहब पर नहीं हुए। ये सारे जितने नबी आए हैं इस तरह की मुखालफत उन्होंने बर्दाश्त की है। ये इस्लाम की हिस्ट्री हमें रिकॉर्ड बताता है। तो बात यह है कि हाँ, अगर ऐसी बातें हों तो हम जैसे लोग जमात अहमदिया कोई मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी पर कायम नहीं है। दुनिया इतनी एडवांस